Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials, where this is going to be a part 2 of cost and revenue analysis series. And in this video, I'm going to cover up your relationship between average cost, marginal cost, total variable cost, and marginal cost, and along with that, long run cost curves. And we are going to wrap this chapter up. Probably for revenue, I'm going to take up another video in which dedicated class for revenue series, and post that we'll move forward to producers equilibrium and determination of equilibrium price and quantity, that is chapter 11, followed by forms of market chapter 9, and we are going to wrap up microeconomics say in another just 4 or 5 videos maybe. Okay, so without much ado, let's get started. सो थोड़ा सा एक क्विक रिकैप कर लेते हैं. आई होप आपने मेरा पिछला वीडियो देख लिया है कॉस्ट का. आई नो इट वाज 1 hour 45 minutes, पूरा एक मूवी बना दिया है उसके ऊपर. बट दैट इलोंगेटेड वीडियो इज इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है. हवाबाजी में, समराइज फॉर्म में, सिर्फ लिख के रीड कर देना, वो सब हिसाब किताब आर्यन ट्यूटोरियल्स का नहीं है. सो प्लीज उसको जाइए, देखिए एंड देन कम बैक टू दिस पार्ट 2 वीडियो. ओके, सो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं. आई होप आपको याद है दैट वी वर टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट बिहेवियर इन शॉर्ट रन, एंड मैंने आपको सिखाया था कि शॉर्ट रन में एज पर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पॉसिबल है बाय ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज, इंक्रीज in variable factors while your fixed factors does not change in the short run, and as a result of which total fixed cost used to remain constant in short run. That is, firm can neither increase nor decrease its fixed factors. इसीलिए देखिए 2 2 2 2 2 2 each है. एंड उसके बाद मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में सिखाया था कि अगर आप कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करते जाओगे फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर, तो हमें पहले कैसा रिटर्न आता है? पहले हमें इंक्रीजिंग रिटर्न आता है जो चैप्टर 7 में हमने किया है, एंड देन हमें डिक्रीजिंग रिटर्न आता है, जिसके वजह से कॉस्ट जो है दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट में एंड देन इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट में. सो इसीलिए आप देखिए मैंने क्या किया है यहां पे, टिल हियर इट हैज इंक्रीज्ड एट अ डिमिनिशिंग रेट. 5 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, एंड देन 4 का डिफरेंस है. सॉरी, 5 का डिफरेंस है, देन 3 का डिफरेंस है, तो यहां 8 तक हो गया आपका डिमिनिशिंग रेट. उसके बाद 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है यानी ये कांस्टेंट रिटर्न वाला पार्ट है, एंड देन उसके बाद आपका 9 का डिफरेंस है एंड 11 का डिफरेंस है. सो इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट. फर्स्ट डिमिनिशिंग रेट एंड देन एट एन इंक्रीजिंग रेट. एंड नाउ टोटल वेरिएबल कॉस्ट के साथ अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर दिया जाए तो हमें हमारा टोटल कॉस्ट मिल जाता है. एंड क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट है एंड वेरिएबल कॉस्ट इज द ओनली कॉस्ट व्हिच इज वेरिंग, व्हिच इज चेंजिंग, देयरफॉर द बिहेवियर ऑफ टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर alike, similar, same. So that is why total cost also initially increases at a diminishing rate and then eventually increases at an increasing rate. Both are following from the law of variable proportion. I hope you remember. So ये था आपका diagram. Horizontal straight line parallel to x-axis was your TFC, which remains constant. Why? Because fixed factors are constant. Total variable cost and total cost curve both are concave downward first and then they are concave upward, depicting that they both are increasing at a diminishing rate first and then at an increasing rate eventually. They both are separated by a parallel distance. Why? Because there is a constant total fixed cost between them. Total cost exceeds total variable cost by constant total fixed cost. And why total cost curve and total fixed cost curve starts from the same point? Because at a zero level of output produced, total variable cost is zero, but total fixed cost is positive. Therefore, when you add 0 with 2, you will get your total cost, which is equal to total fixed cost. And that is why total cost for 0 level of output is 2, which is equivalent to total fixed cost. So they both start from the same point. ठीक है.
एंड उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर सेपरेटेड बाय अ कांस्टेंट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. आई होप यू रिमेंबर. एंड देन हमने एवरेज फिक्स कॉस्ट कर लिया था. क्या था एवरेज फिक्स कॉस्ट? केक का एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, क्योंकि साइज ऑफ द केक इज कांस्टेंट, दैट मींस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट थ्रू आउट irrespective of level of output. Therefore, as output produced increases, total fixed cost is spread over, it gets divided into larger and larger units, and as a result of which average fixed cost falls throughout its length, continuously गिरते रहता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, as the output produced increases, average fixed cost continuously fall. Also note that for a low level of output, average fixed cost is very high, and for a high level of output, average fixed cost is very low. Why so? Because for a low level of output, TFC is in a higher percentage, and as the output produced increases, total fixed cost gets spread over larger unit, leading to decline in average fixed cost. In other words, average fixed cost approaches both the axis but never touches. Why? Because AFC, average fixed cost, can never be equal to zero. And why? क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को निकाला जा रहा है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से. AFC is equal to TFC by Q, and TFC can never be zero. So अगर मैथमेटिकली न्यूमरेटर जीरो नहीं होगा तो फाइनल आंसर भी जीरो नहीं आएगा. So it is asymptotically hyperbola. Asymptotic implies that it will never touch either of the axis, be it vertical axis or be it horizontal axis, and hyperbola implies that it approaches both the axis. I hope that is clear. And अपना दोनों ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट डिराइव होते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट से, एंड दे बोथ आर इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड देन इंक्रीजिंग रेट बोल के दे बोथ इनिशियली डिक्रीजेस and then eventually increases following from the law of variable proportion. They are U-shaped. And same thing goes for marginal cost as well. Marginal cost is the change in total cost, and क्योंकि change यानी total cost का change is same as total variable cost, that is it is increasing at a diminishing rate बोल के marginal cost is also declining. And then when total cost and total variable cost both are increasing at an increasing rate बोल के marginal cost is increasing. In other words, it is also U-shaped. ठीक है, following from the law of variable proportion. I hope that is clear. चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका रिलेशनशिप के साथ. किसके बीच का? सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट का रिलेशनशिप के साथ. तो उसके लिए आइए पहले एक क्वाड्रेंट खींच लेते हैं. y एक्सिस ओरिजिन, x एक्सिस यहां मैं लिख दूंगा आउटपुट, एंड यहां मैं लिख देता हूं एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि यहां क्या हो रहा है. सॉरी, कि यहां क्या हो रहा है. इनिशियली हम लोग देख पा रहे हैं दैट एवरेज कॉस्ट इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट, राइट? सो व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज डिक्लाइनिंग, यहां से यहां तक, actually यहां तक, when marginal cost is declining, average cost is also falling. See, average cost is also falling. Reason why? क्यों? Because marginal change जो है it is less than average, and it's a universal behavior कि अगर change यानी कि marginal एवरेज से अगर कम रहेगा तो उसका टेंडेंसी होता है वो हमेशा एवरेज को नीचे ही लेके आएगा. चलो मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं. आपने रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट किया था. आई होप यू रिमेंबर दिस. और उसमें आपने क्या किया था? दैट इफ मार्जिनल प्रोडक्ट रिमेन्स ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीजेस, राइट?
AP increases. उसके बाद आपने किया था if marginal product is equal to average product, then average product remains constant. And तीसरा था that if marginal product is less than average product, then average product decreases, then it starts to decline average product. तो यही सेम रिलेशनशिप ही तो मैं आपको भी बोलना चाह रहा हूं ना, कि अगर मार्जिनल कम होगा एवरेज से तो वो हमेशा एवरेज को नीचे लेके आएगा. तो ये मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्ट में ये आपका थर्ड रिलेशनशिप था. कॉस्ट के फॉर्म में ये आपका फर्स्ट रिलेशनशिप बन जाता है, दैट इफ मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट डिक्रीजेस. आई होप दैट इज क्लियर. तो सेकंड रिलेशनशिप क्या होगा? सेकंड रिलेशनशिप ये होगा दैट अगर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हुआ एवरेज कॉस्ट से, then your average cost will remain constant, it will not change. ठीक है, it will remain constant. एंड तीसरा रिलेशनशिप जो आप बोल रहे हो प्रोडक्शन से निकालते हुए, कि अगर मार्जिनल ज्यादा हो एवरेज से, जो कि यहां अगर आप देखो, यहां पे क्या देख पा रहे हैं कि मार्जिनल बिकम्स ग्रेटर देन एवरेज, राइट? मार्जिनल बिकम्स ग्रेटर देन एवरेज एंड देयरफॉर एवरेज स्टार्ट्स टू राइज. सो थर्ड रिलेशनशिप इज if marginal cost becomes greater than average cost, then your average cost will start to increase, it will start to rise. So that is your third relationship. बोल के डायग्राम कैसा बनेगा? Your diagram would be this is how your average cost looks like, right? And at the same time आपने क्या बोला कि जब तक मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट डिक्रीजेस. सो एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, व्हाई? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट भी डिक्रीज हो रहा है, बट देन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, दैट इज व्हाई. अब देख पा रहे मार्जिनल नीचे है एवरेज के, बोल के एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग. उसके बाद आप बोलते हो that when marginal cost is equal to average cost, मतलब कि इस पॉइंट पे आप प्रोडक्शन वाला को याद करो ना, आपने प्रोडक्शन में क्या किया था? मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट के मैक्सिमम पे काट रहा था. मार्जिनल प्रोडक्ट वाज इंटरसेक्टिंग एवरेज प्रोडक्ट एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट. तो यहां क्या हो जाएगा? यहां ठीक उल्टा हो जाएगा, दैट मार्जिनल कॉस्ट इज गोइंग टू इंटरसेक्ट, कट एवरेज कॉस्ट एट इट्स मिनिमम पॉइंट. So when marginal cost is equal to average cost at its minimum point, average cost will be constant at its minimum. ठीक है, will be constant at its minimum. ये वाला जोन के लिए आप क्या बोलोगे? इस जोन के लिए है that when marginal cost is less than average cost is falling, average cost is declining up to this level of output. एंड उसके बाद क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट ओवरटेक करना शुरू कर देता है, राइट? ऊपर चला जाएगा. सो OQ जीरो लेवल के बाद क्या हो रहा है? आप देख पा रहे हैं एवरेज कॉस्ट नीचे, मार्जिनल कॉस्ट ऊपर है. सो इट मींस दैट मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट. Marginal cost is greater than average cost and therefore average cost increases. So when marginal cost is more than average cost, बोल के average cost rises. So कुछ नहीं करना है, बस जैसे आपने मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट बनाया था ना, मार्जिनल प्रोडक्ट था ऐसा एंड एवरेज प्रोडक्ट था ऐसा, इफ यू रिमेंबर, राइट? ठीक इसका उल्टा ग्राफ बन जा रहा है कि एवरेज कॉस्ट है ऐसा एंड ठीक उसके मिनिमम पॉइंट से मार्जिनल कॉस्ट उसको इंटरसेक्ट करते हुए ऊपर चल जा रहा है. ठीक है, जस्ट ऑपोजिट बन जाएगा, बाकी रिलेशनशिप सेम है. जो मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्ट का फर्स्ट रिलेशनशिप है वो कॉस्ट के टर्म्स में थर्ड रिलेशनशिप बन जा रहा है. सेकेंड रिलेशनशिप जो था MP इक्वल AP, वो सेकेंड ही रह रहा है. MC इक्वल AC, AC इज कांस्टेंट, AP इज कांस्टेंट. एंड जो इसका थर्ड रिलेशनशिप था दैट इफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट, ये इसका फर्स्ट रिलेशनशिप बन जा रहा है.
that if your marginal cost is less than average cost falls, marginal cost equal to average cost is constant, marginal cost is greater than average cost starts to rise. I hope that is clear and आपको समझ में आ गया है कि कैसा बनेगा डायग्राम. ठीक है, चलो लेट्स गो अहेड. इसके बाद हमारा नेक्स्ट रिलेशनशिप वी आर गोइंग टू टेक अप relationship between total variable cost and marginal cost. ठीक है, तो let's borrow the data from here itself. 0, 5, 8, 12, 16, 25, 36. Output 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total variable cost is 0, 5, 8, 12, 16, 24, 25 and 36. टोटल कॉस्ट है, इसमें प्लस 2 2 2 2 2 ईच कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा 2, 7, 10, 14, 18, 27 and 38. So marginal cost कैसे निकलेगा? Marginal cost will be change in total cost TCN minus TCN minus 1, या फिर आप change in total variable cost भी बोल सकते हो TVCN minus TVCN-1. क्यों TVC से भी सेम ही निकलेगा? क्योंकि मैं याद है ना, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था दैट मार्जिनल रेफर्स टू चेंज एंड टोटल कॉस्ट का चेंज इज डिपेंडेंट अपॉन द चेंज ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोल के आप मार्जिनल कॉस्ट दोनों से ही निकाल सकते हो. सो मार्जिनल कॉस्ट क्या आ जाएगा? पहला आ जाएगा नथिंग, उसके बाद चेंज ले लो. चेंज कितना का है? 7 minus 2 is 5, 5 minus 0 is 5, 10 minus 7 is 3, 8 minus 5 is 3, 14 minus 10 is 4, 12 minus 8 is 4, 18 minus 4 is 4, 16 minus 12 is 4, 27 minus 18 is 9, 25 minus 16 is 9, and 38 minus 27 is 11, 11. So marginal cost derived for both total variable cost and total cost is same. ठीक है, so when both total variable cost and total cost they increase at a diminishing rate, marginal cost decreases, remains constant, and when they both are increasing at an increasing rate, then marginal cost starts to increase. So कैसा डायग्राम बनेगा in terms of relationship अगर बात करें? Output, total variable cost and total cost. This is how your total variable cost looks like, and this is how your total cost looks like, right? And they both have a parallel separate distance up till here, OQ0, where they are both concave downward first and then concave upward. So marginal cost ठीक इसके नीचे बनाऊंगा मैं, y-axis MC and output. क्या करेंगे हम लोग पहले इसको नीचे तक ऐसे ड्रॉप करेंगे इस परपेंडिकुलर को, क्योंकि दिस इज इंप्लाइंग दैट both have risen at a diminishing rate first बोल के marginal cost क्या होगा? It decreases. Then the point where they both are changing their slope, marginal cost will be minimum and constant over there. ठीक है, 4 4 minimum and constant over there. And then उसके बाद when they are increasing at an increasing rate, marginal cost
starts to rise, it starts to increase. So relationship क्या निकलेगा? आपको याद है आपने अपने टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का रिलेशनशिप बनाया था, राइट? जस्ट उसका उल्टा बन गया है यहाँ पे, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करता था इंक्रीजिंग रेट में, बोल के मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट में, बोल के मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज कर रहा है। यानी ये थर्ड वाला पार्ट पहला पार्ट आ गया है। देन ये इंक्रीज करता था डिमिनिशिंग रेट में, बोल के मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज करता था, एंड क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट में, बोल के मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है। एंड ये था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहां पे मार्जिनल अपने मैक्सिमम पे था, यही है वो स्लोप चेंजिंग पॉइंट जहां पे मार्जिनल कॉस्ट अपने मिनिमम पे है। ठीक है, सो इससे हमारा क्या रिलेशनशिप निकलता है? तीन रिलेशनशिप। फर्स्ट रिलेशनशिप इज दैट व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज डिक्लाइनिंग, both total variable cost and total cost are increasing at a diminishing rate. Second relationship is that when marginal cost is increasing, both total variable cost and total cost are increasing at an increasing rate. And तीसरा, when marginal cost is minimum, both total variable cost and total cost changes its slope. ठीक है, changes its slope just like your total product and marginal product. I hope that is clear, आपको समझ में आ गया होगा, सबके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को डाल दीजिएगा, आई एम गोइंग टू रेक्टिफाई इट। चलिए, मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ कॉस्ट विच इज लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स। ठीक है, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व जिसमें हमें कवर अप करना है लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। सो देखिए, सबसे पहला चीज तो लॉन्ग रन इज एसोसिएटेड, ठीक है, इट इज रिलेटेड, एसोसिएटेड विथ स्केल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, या जिसको आप रिटर्न्स टू अ स्केल भी बोल सकते हो। ठीक है, रिटर्न टू अ स्केल आता है, नॉट रिटर्न टू अ फैक्टर। रिटर्न टू अ फैक्टर इज एसोसिएटेड विद शॉर्ट रन फिनोमिनन, जबकि लॉन्ग रन का अगर बात करते हैं, लॉन्ग रन में जो भी रिटर्न आएगा, क्योंकि लॉन्ग रन में आपने क्या सीखा है दैट लॉन्ग रन में प्रोडक्शन चैप्टर में ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, मतलब कोई भी फैक्टर फिक्स्ड नहीं है, सारे फैक्टर को आप चेंज कर सकते हो। आप नया प्लांट बैठा सकते हो, नया मशीनरी लगा सकते हो, आप लेबर्स को भी इंक्रीज कर सकते हो। चेंजिंग एनी फैक्टर टू एनी एक्सटेंट इज पॉसिबल अंडर लॉन्ग रन, एंड देयरफॉर लॉन्ग रन में जो भी रिटर्न आते हैं वो रिटर्न टू अ स्केल कहलाते हैं। स्केलेबिलिटी, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन एटसेट्रा। ठीक है, सो लॉन्ग रन में ऐसा देखा जाता है कि जब आप कंटिन्यूअसली अपना प्लांट का साइड को एक्सपैंड करते हो, इंक्रीज करते हो, तो उसकी वजह से पहले इनिशियल लेवल में काफी समय तक जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करता है, और उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है कॉस्ट एडवांटेज। कि मान लीजिए अगर शॉर्ट रन में आपको अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना है, आप वेरिएबल फैक्टर्स को जैसे तैसे इंक्रीज करके बढ़ा ले रहे हो, बट एक पॉइंट के बाद आपका कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है, वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट्स टू इंक्रीज, राइट? बट वही चीज लॉन्ग रन में अगर आपको आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना हो, तो इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर्स इन द लॉन्ग रन, यू आर रादर गोइंग टू प्लेस अनदर प्लांट एंड अनदर मशीनरी, एक और फैक्ट्री लेआउट आप डाल दोगे, जो कि
उसी एफिशिएंसी के साथ प्रोड्यूस करेगा जो पहला मशीन एंड प्लांट प्रोड्यूस कर रहा था, जिसकी वजह से आपका कॉस्ट कंट्रोल हो पाएगा एंड उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल या कॉस्ट एडवांटेज। बट मान लीजिए ऐसे करते करते आपके डिमांड के हिसाब से आपने ऐसे 5 फैक्ट्री डाल दिए, जिसमें से 3 फैक्ट्री जितना आउटपुट प्रोड्यूस करता है वो सब बिक जाता है, बट 2 फैक्ट्रीज जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है वो अपने से 50% कैपेसिटी पे ही ऑपरेट कर रहा है, 100% पे नहीं कर पा रहा है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो बाकी 2 फैक्ट्री या लेआउट है उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा आउटपुट को बनाने का वो ज्यादा होगा कंपेयर टू दी अदर 3 लेआउट, जिसको हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कि अगर आपने प्लांट साइज इंक्रीज कर लिया लेकिन वो अगर अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पे ऑपरेट नहीं कर पा रहा है तो फिर आपको डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगा, जिसका मतलब होता है कॉस्ट डिस एडवांटेज। ठीक है, कॉस्ट डिसएडवांटेज। और इसी की वजह से जो अपना लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट है वो कैसा दिखेगा, बेसिकली y axis origin, x axis आउटपुट एंड लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। प्लीज याद रखिएगा कि लॉन्ग रन में टोटल वेरिएबल कॉस्ट कुछ नहीं होगा, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर्स भी चेंज हो रहे हैं लॉन्ग रन में और वेरिएबल फैक्टर्स भी चेंज हो रहे हैं। सो ऑल द कॉस्ट आर वेरिएबल, तो उससे हमें डायरेक्टली टोटल कॉस्ट ही मिल जाएगा। ठीक है, जैसे शॉर्ट रन में आपको फिक्स्ड कॉस्ट अलग से मिल रहा है, वेरिएबल कॉस्ट अलग से मिल रहा है, लॉन्ग रन में ऐसा कुछ नहीं होता है। लॉन्ग रन में सीधा टोटल कॉस्ट ही आएगा, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। एंड बेसिकली लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट जो होता है अपना शॉर्ट रन कॉस्ट को कंबाइन करके बहुत सारे, जैसे आपने किया ना कि ये था शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट के ओरिजिन से नहीं शुरू होकर अबव ओरिजिन से स्टार्ट होता है, फिर जब एक और प्लांट साइज आप बैठाएंगे तो फिर उसके लिए एक और ऑपरेट करेगा, फिर उसके लिए एक और ऑपरेट करेगा शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट, फिर एक और ऑपरेट करेगा शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट। सो बेसिकली ये बहुत सारे शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व्स है। ठीक है, एसटीसी का मतलब हो गया शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट, जो कि अलग अलग प्लांट के हिसाब से ऑपरेट करता है। इन सब का अगर ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन को पकड़ा जाए, ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन का मतलब हुआ, ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन का मतलब हुआ कि ये वाला जोन, क्योंकि इसके बाद तो कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट में एंड यहां तक इंक्रीज किया है डिमिनिशिंग रेट में, राइट। तो ये इसका ऑप्टिमम लेवल हुआ। लेट मी मार्क इट एज पॉइंट बी। ये इसका ऑप्टिमम लेवल हो गया, राइट, पॉइंट सी। ये इसका ऑप्टिमम लेवल हो गया पॉइंट डी एंड ये हो गया इसका ऑप्टिमम लेवल पॉइंट ई। एंड इन सब के साथ एक टैंजेंशियल पॉइंट अगर बनाया जाए, ठीक है, टैंजेंशियल पॉइंट अगर बनाया जाए, एक टैंजेंशियल पॉइंट अगर बनाया जाए तो देखेंगे कि लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट जो है एलटीसी ये अलग अलग टैंजेंशियल पॉइंट को जोड़ के आ रहा है। सो इन अदर वर्ड्स जो एलटीसी का डेरिवेशन आता है वो कुछ इस प्रकार से आएगा कि ये भी पहले लॉन्ग रन में ऐसे कनकेव डाउनवर्ड है एंड देन कॉनकेव अपवर्ड है। ठीक है, LTC is also initially concave downward and then concave upward when we join the different tangential point. So depicting that long run total cost also increases at a diminishing rate. In the long run, it reaches its optimum level, which is somewhere यहाँ कहीं पे आएगा, क्योंकि यहाँ ये पॉइंट डिपिक्ट कर रहा है से पॉइंट ए कि सारे प्लांट जितने भी मैंने अभी तक लगाए हैं वो सब अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं एंड उसके बियॉन्ड जो ये लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट ऊपर चल जा रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि कुछ प्लांट्स है जो कि अंडर यूटिलाइज्ड रह जा रहे हैं, बोल के कॉस्ट ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, तो इसी जोन को हम लोग बोलते हैं, इसी जोन को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड इस जोन को हम लोग बोलते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल and this is called the optimum
लेवल ऑफ आउटपुट, एंड ऐसा आएगा आपका लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व। अब आपको क्या डेरिवेशन जो ऐसे शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व का डेरिवेशन है वो लेके करना पड़ेगा? द आंसर इज नो, आपको शॉर्ट रन का डेरिवेशन नहीं लेना है। इट्स जस्ट दैट के लॉन्ग रन में क्या होता है, आपको बेसिक जानना है कि लॉन्ग रन में सारे जो फर्म है अपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एडजस्ट कर सकते हैं, कैन एडजस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन by expanding its plant size and achieve the minimum cost for any level of output. So ये करना है, कॉन्सेप्ट जानना है लॉन्ग रन का, एंड उसके बाद डायरेक्टली लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व कैसा दिखेगा, जो कि मैंने आपको डेरिवेशन से करके बताया कि जब हम लोग बहुत सारे शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व का ऑप्टिमम लेवल को लेते हैं, तब हमें लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व एक टैंजेंशियल पॉइंट पे आता है। तो आपको डेरिवेशन नहीं करना है, आपको सिर्फ बता देना है कि लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व है वो शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व से डिराइव होता है, उन सबको जोड़ के, बस इतना। एंड जो शेप है लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व का वो भी कॉनकेव डाउनवर्ड है पहले, यानी इट इज इंक्रीजिंग एट ए डिमिनिशिंग रेट, एंड देन कॉनकेव अपवर्ड है, increasing at an increasing rate, ठीक है। beyond a certain level of output it is concave upward, यानी इस पॉइंट के बाद वाला हिस्सा कॉनकेव अपवर्ड, ठीक है। ग्राफिकली इट इज ऑल्सो इन्वर्टेड एस शेप, इंडिकेटिंग दैट कॉस्ट राइज एज आउटपुट एक्सपैंड बट एट वेरिंग रेट्स। बस इतना कर लेने से ही आपका काम हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के बारे में, तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा? बेसिकली जब बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को जोड़ा जाएगा तो उसमें जो लीस्ट पॉसिबल पर यूनिट आउटपुट आएगा, प्रोडक्शन आउटपुट आएगा, उसको हम लोग लेके लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बनाएंगे, जो कि लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट से ही निकलेगा डिवाइडेड बाय आउटपुट। सो देखिए बेसिकली क्या होता है कि जब बहुत सारे ये आपके शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, ठीक है, SAC1, SAC2, SAC3, SAC4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करके ऐसे बहुत सारे शॉर्ट रन कॉस्ट जब बनते हैं और उन सब के टैंजेंशियल पॉइंट को जब एक साथ लिया जाता है तो उससे हमें पता चलता है कि जो लॉन्ग रन कॉस्ट डिराइव होता है वो भी आपका यू शेप में ही निकल के आता है, यानी ये वाला हिस्सा ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, यानी प्लांट के साइज को एक्सपैंड करने की वजह से पहले कॉस्ट गिरता है, ये अपने ऑप्टिमम लेवल पे आता है विच इज एट इट्स मिनिमम लॉन्ग रन, एंड देन एक्सपैंड करता है ड्यू टू डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कॉस्ट डिसएडवांटेज की वजह से ये ऊपर जाता है। सो क्या आपको ये डेरिवेशन करने का है? जी नहीं, आपको सिर्फ ये वाला ग्राफ जानना है कि वो भी यू शेप पे ही है, इनिशियली नेगेटिवली स्लोपिंग है, इवेंचुअली पॉजिटिवली स्लोपिंग है, एंड इस पॉइंट पे एक नाम रख दीजिएगा पॉइंट ए, यहाँ पे वो अपने ऑप्टिमम लेवल पे है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे, ठीक है। एंड सेम लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी क्या होता है, अब देखिए मैं आपको अगर प्लॉट करके दिखाऊंगा तो शायद आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, बट स्टिल आइए मैं आपको समझाने का कोशिश कर देता हूं थोड़ा सा। बेसिकली ऐसा देखा जाता है कि ये आपका आ गया LAC, ठीक है, जिसमें ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 1 हो गया, ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 2 हो गया, ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 3 हो गया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 4 हो गया, और ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व
5 हो गया, ठीक है। सो हमने सीखा है कि मार्जिनल कॉस्ट जो होता है, मार्जिनल कॉस्ट सारे ही एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट से कट करता है, राइट? सबकी ही मिनिमम पॉइंट से कट करता है। सो इसके लिए ये हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट शॉर्ट रन, इसके लिए ये हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट, इसके लिए ये हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट, इसके लिए ये हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट, एंड इसके लिए ये हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। सो बेसिकली जब ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन निकाला जाता है एवरेज कॉस्ट का, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे अगर एवरेज कॉस्ट इतना है तो मार्जिनल कॉस्ट कितना आ रहा है उसके हिसाब से, मार्जिनल कॉस्ट भी आ रहा है समवेयर आई थिंक ऊपर, इस लेवल ऑफ आउटपुट पे मार्जिनल कॉस्ट आ जाता है ऊपर। फिर सिमिलरली अगर इस लेवल के लिए, ऑप्टिमम लेवल के लिए मार्जिनल कॉस्ट निकाला जाए तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाता है समवेयर नीचे। फिर इस लेवल के लिए अगर ऑप्टिमम निकाला जाए, एवरेज कॉस्ट अगर इतना है तो मार्जिनल कितना है, मार्जिनल कॉस्ट आ रहा है और नीचे। फिर उसके बाद इसका अगर ऑप्टिमम लेवल निकाला जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कितना आ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट आ जा रहा है और थोड़ा मार्जिनल कॉस्ट आ जा रहा है और थोड़ा ऊपर। एंड इसका अगर ऑप्टिमम लेवल पे निकाला जाए तो मार्जिनल कॉस्ट आ जा रहा है इस लेवल ऑफ आउटपुट पे, मार्जिनल कॉस्ट समवेयर आएगा यहाँ कहीं पे और थोड़ा ऊपर। सो कहने का मतलब है कि बहुत सारे मार्जिनल कॉस्ट का जो अलग अलग लेवल ऑफ आउटपुट आ रहा है उन सब को, जैसे ये वाला पार्ट मार्जिनल कॉस्ट का, फिर नहीं आई थिंक कुछ ज्वाइन करके अलग अलग लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे मार्जिनल कॉस्ट भी कुछ इस प्रकार का आता हुआ दिखाई देता है, समथिंग कुछ ऐसा जाता है। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द डायग्राम, बट कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग रन में भी क्या होता है, लॉन्ग रन में भी क्या होता है, जो अपना लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट उसी के मिनिमम पॉइंट पे ही कट करता है, जस्ट लाइक योर शॉर्ट रन कर्व्स। बस आपको इतना ही जानना है। सो बेसिकली अगर आप इधर देखेंगे, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप पे ही निकल के आता है, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व एंड शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व को जोड़ जोड़ के कि इन सब में मार्जिनल कॉस्ट जो है ऐसे मिनिमम से काटते हुए, मिनिमम पॉइंट से काटते हुए मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट निकलता है। एंड इनको अगर रिलेशनशिप के तौर पे जब जोड़ा जाता है तो एकदम शॉर्ट रन जैसा ही आपका कर्व निकल के आता है। और सेम रिलेशनशिप जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का था, वही सेम रिलेशनशिप होता है, दैट जब तक मार्जिनल कॉस्ट, एज लॉन्ग एज मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, आगे आप एल एल लगा दीजिए। सो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, average cost curve decreases, it falls. When long run marginal cost curve is equal to long run average cost curve, long run average cost is constant and at its minimum. And तीसरे केस में when long run marginal cost curve is greater than long run average cost curve, long run average cost curve starts to rise, starts to increase. सेम रिलेशनशिप निकल के आता है, कुछ अलग नहीं है। तो लॉन्ग रन में आपको खाली रिलेशनशिप करना है, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट क्या होता है। डेरिवेशंस जो है, डेरिवेशन मतलब कि हमने जो बहुत सारे शॉर्ट रन कर्व्स को जोड़ जोड़ के बनाया, वो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। ये जो डेरिवेशन हो जाएगा वो रिक्वायर्ड नहीं है शॉर्ट रन और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का, ठीक है, वो रिक्वायर्ड नहीं है। गॉट इट? आई होप दैट इज क्लियर। एंड विद दिस आई थिंक वी कम टू द एंड ऑफ आवर कॉस्ट सीरीज। अब बचा है आपका रेवेन्यू।
हाँ चलिए हो गया, कॉस्ट इज कंप्लीटेड, रेवेन्यू रिलेशनशिप आप देख लीजिएगा क्या है. एंड इफ यू वांट टू डाउनलोड दीज नोट्स, देन if you are an Android user, you need to download my app, Aryan Tutorials, and over there, this is as a paid course at rupees 249, जिसको आप खाली या तो अपने मोबाइल से एक्सेस कर पाओगे या तो अपने लैपटॉप से भी एक्सेस कर पाओगे. अगर आपको लैपटॉप से एक्सेस करना है तो आपको क्लास प्लस के वेबसाइट पे जाना है. आप क्लास प्लस वेबसाइट पे चले जाइए एंड वहां पे मेरा ऑर्गेनाइजेशन कोड है PNY इसको पंच इन करिए, अपना नंबर डालिए, ओटीपी आएगा, रजिस्टर करिए, परचेज करिए नोट को एंड लैपटॉप में भी आप पढ़ पाओगे. नाउ बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि हम इसको डाउनलोड क्यों नहीं कर पा रहे या प्रिंट क्यों नहीं करा पा रहे, क्योंकि आप लोगों की जनरेशन का प्रॉब्लम ये है, आप लोग फिर सब जगह फ्री में उसको बांटना शुरू कर देते हो. आप पैसा पे कर रहे हो, you should be reaping the benefit of the efforts that you are putting in. फ्री लोडर्स मत बनिए एंड फ्री लोडर्स को एंटरटेन भी मत करिए. हर चीज आपको फ्री में नहीं मिल सकता है. क्वालिटी चीजों के लिए कुछ तो बेयर मिनिमम प्राइस आप पे करोगे. हमारा भी घर बार इसी से चल रहा है. सो इफ यू एक्सपेक्ट यू विल गेट एवरीथिंग फॉर फ्री, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट? एंड let me tell you that these are one of the best notes you can get your hands on. इसके बाद आपको आपके टेक्स्ट बुक का भी रिक्वायरमेंट नहीं है. 9 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस इज नॉट अ जोक. बहुत सारे स्टूडेंट्स 95 प्लस 100 लेके गए हुए हैं, यहाँ से पढ़े हुए हैं. आपको आई थिंक अभी तक मेरा सारा एक्सप्लेनेशन वीडियोस जो लोग आप मुझे फॉलो कर रहे हैं देख के समझ में आ रहा होगा कि बंदे में दम है जब वो पढ़ा रहा है कोई चीज को, बिकॉज आई हैव इन डेप्थ इंट्रिकेट नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट. इट इज नॉट लाइक मैं खाली जस्ट रीड कर दे रहा हूँ कि ऐसा है ऐसा है. मैं आपको कंसेप्चुअली भी समझाने का कोशिश कर रहा हूँ. थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, राइट? इसको परचेज कर लीजिए, 249 रुपीज में है. ऐसा भी नहीं है कि मैंने 1000 रुपए रख दिया है कि nobody can afford it. People can afford it. And with that, I'm also going to come up with MCQ series of the entire microeconomics, and then I think somewhere in the month of November, December for the entire macroeconomics. रिविजन कराएंगे आपको. हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कैसे सॉल्व करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे एनालाइज करना है, सब कुछ सिखाया जाएगा. बट थिंग्स टेक टाइम, इट टेक्स एफर्ट, and that effort has to be rewarded by a bare minimum price that we expect. How do we survive otherwise? So do not come up expecting that you are not giving these things for free. बाकी लोग तो फ्री में दे रहे हैं. अगर बाकी लोग फ्री में दे रहे हैं तो आप बाकी लोग का कंटेंट देख लीजिए जाके, ठीक है? इट इज योर चॉइस एट योर ओन डिस्क्रिप्शन. अगर आपको किसी और का कंटेंट पसंद आ रहा है, एब्सोल्युटली योर विल, योर विश, योर टेक ऑन दैट. आप उसको ले सकते हैं. आपको अगर मेरा समझ में आता है आप मेरा यूज करिए, ठीक है? सो विद दिस आई विल टेक योर लीव फॉर टुडेज वीडियो. इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू कम अप विद योर रेवेन्यू सीरीज एंड देन फटाफट से और बस आने वाले 3-4 वीडियो में हम लोग पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स को रैप अप करते हैं. सो विद दिस कीप स्माइलिंग, कीप स्टडीइंग, टेक केयर, बाय बाय, आई विल सी यू सून.